Hello everyone, welcome to the module 2 of the option payoff series. Today we are going to do the basic payoffs of a call and a put option. So take an example that we are buying a 11,450 strike price call at a premium of 65 rupees. अपन 11,450 की कॉल 65 रुपीज में खरीद रहे हैं. So now just focus on this word, that is buy. Buy का मतलब debit and debit means negative. So where does negative come in this line? Negative comes below zero, zero के नीचे आता है. So simply we'll create a line like this. ठीक है? And this line we'll name it as minus 65. Why? Because we are paying 65 rupees over here. Got the point? And now, what is the golden rule of call option? Whenever the market goes up, the call option goes up. Whenever the market falls, the call option will also fall. Right? So, whenever the market goes up, that is, whenever the market goes to the upside, that is, this right line, this horizontal line is going to the right side from 0 to positive. That is, it is going to the right side and the call option will move up. So we'll create a line like this. So what does this line indicate? This line indicates that Nifty left से right जा रहा है. Nifty left से right जा रहा है and this line is also moving up. Right? So this is the line of a call option. Now you would have a certain doubt. सर इसके बाजू में तो ये फ्लैट लाइन है, ये तो नीचे जाना चाहिए ना. आपने बताया कि कॉल ऑप्शन नीचे जाता है जब निफ्टी नीचे जाता है. बट रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर यू पे समथिंग, दैट इज, आप जब भी कुछ बाय करते हो आपको पता है कि आपका लॉस कितना होगा. सो वेन एवर मार्केट गोज बियॉन्ड 11,450, your maximum loss will be only minus 65. That is, your loss will be only 65 rupees. So that is the beauty when you buy a call option. आपको पता है कि आपका लॉस कितना होने वाला है. That is why it is called a debit strategy, right? Now here you have to consider these 2 points. ये 2 point पर you have to consider, which is this point. This point is 11,450. Why? Because from here the call option is having certain value and it is moving up. As you can see, यहाँ पर से ये call option ऊपर बढ़ रहा है. So whenever this call option moves up, this is the strike price. यहाँ से इसके ऊपर से the call option would have certain amount of money left. इसके लिए this is the strike price of the call. तो ये जो point है, this point is 11,450. Okay, and now this point, whenever the rate touches the zero line and it crosses above, that is, ये break even point हो गया अपना, जहां पर अपन cost to cost रहेंगे. So this point, ये point कैसे calculate होगा? Second point, this point is calculated by adding the premium of the strike price. Strike price क्या है? 11,450. What is the premium? The premium is 65 rupees. So whenever you buy a call option or whenever you see a call option, just add the premium to the point. To the point means to the strike price. Strike price क्या है? 11,450. Premium क्या है? 65 rupees. So what is the break even? The break even over here is 11,515. अगर मार्केट 11,515 के ऊपर जाता है, you would have profits in your account. And this payoff graph is of expiry. मार्केट एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मैं. अगर मार्केट 11,515 के ऊपर बंद होता है, देन यू वुड हैव प्रॉफिट्स. सो गॉट द बेसिक पे ऑफ ग्राफ ऑफ अ कॉल ऑप्शन, राइट? सो नाउ अपन ना पुट ऑप्शन का बेसिक पे ऑफ ग्राफ बनाते हैं. ठीक है? सो ओवर हियर लेट्स अज्यूम वी आर बाइंग 11,450 स्ट्राइक प्राइस पुट at a premium of 65 rupees. Again, सिर्फ बाय पर फोकस करना. बाय मतलब डेबिट, डेबिट मतलब नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? जीरो के नीचे. सो वील ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस. एंड ये लाइन का मतलब हो गया है कि इसका मतलब 65 रुपीज है.
बिकॉज वी आर पेइंग 65 रुपीज, डेबिट कर रहे हैं, 65 रुपीज भर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ अ पुट ऑप्शन? मार्केट जब जितना नीचे जाएगा पुट ऑप्शन उतना नीचे जाएगा, मार्केट जितना ऊपर जाएगा पुट ऑप्शन का भाव कम होते जाएगा, ठीक है। ओवर हियर मार्केट जितना नीचे जाएगा, दैट इज मार्केट जितना लेफ्ट साइड जाएगा, दैट इज ये लेफ्ट साइड मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से यहां जाती है, फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, तो ये पुट ऑप्शन बढ़ते जाएगा। सो वी विल क्रिएट अ लाइन लाइक दिस, गॉट द पॉइंट? दिस पॉइंट दैट इज दिस एंड दिस पॉइंट, ठीक है। सो इन द कॉल ऑप्शन ग्राफ व्हाट डिड वी कंक्लूड? ये पॉइंट क्या होगा? दिस पॉइंट विल बी द स्ट्राइक प्राइस, राइट, बिकॉज यहां से पुट ऑप्शन के पास कुछ ना कुछ प्रीमियम बचा होगा, राइट। सो वी नेम दिस एज 11,450, ओके। नाउ दिस ग्राफ, दिस पॉइंट जहां पर अपना ब्रेक इवन है, जहां पर ये लाइन ऊपर जा रही है, एंड दिस पॉइंट इज टचिंग द जीरो लाइन ग्राफ, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन द कॉल ऑप्शन वी वर एडिंग द प्रीमियम टू द स्ट्राइक प्राइस, और यहां पर अपन स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर देंगे। सो माइनस करेंगे तो 11,450 माइनस द प्रीमियम हो गया अपना भाव 11,385 रुपीज। तो व्हाट इज दिस पॉइंट? 11,385 रुपीज, ओके। नाउ देर इज अ बेसिक थिंग, basic mathematical thing over here which we can conclude that in the first graph, that is in the call option graph, this line had a point, had a ray, right? arrow था यहाँ पर। arrow का मतलब होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर से उधर ऐसा पॉइंट था, ठीक है। तो क्या हुआ ये मतलब मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, करोड़ कहीं भी जा सकता है थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं, मतलब इतना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी इसके लिए यहां पर अपन एक रे बनाते हैं कॉल ऑप्शन में। बट पुट ऑप्शन में अपन यहां पर रे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट जीरो से नीचे नहीं जा सकता। निफ्टी अगर 11,500 पर अभी है, इफ निफ्टी इज एट 11,500, इट कैन ओनली फॉल 11,500 पॉइंट्स, जीरो के नीचे जा नहीं सकता। सो इट इज प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली वेरी लिमिटेड। तो इसके लिए अपन यहां पर एक लाइन बनाते हैं, ना ही एक रे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।